चलो, so we were dealing with matter in our surroundings. हम वो चैप्टर कर रहे हैं, केमिस्ट्री का चैप्टर है, ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. We studied about different states of matter. हमने उनका conversion पढ़ा कि a solid can be converted into liquid, a liquid can be converted into gas, a gas can be converted into a liquid, and a liquid can be converted into solid. So we did कि अगर हम टेम्परेचर का कुछ वेरिएशन करते हैं तब ये चीज पॉसिबल है, या हम प्रेशर में कुछ वेरिएशन लाते हैं तब ये चीज पॉसिबल है. सो वी वर स्टार्टिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. हमने ये पढ़ा था कि लाइक व्हेन यू हीटेड अप द सॉलिड, लाइक वी टुक द एग्जांपल ऑफ आइस. व्हेन आइस इज बीइंग मेल्टेड तो वो हमें लिक्विड में जनरेट हो जाता है. बट आई वाज टेलिंग यू कि वो जो टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है. जब तक वो आइस मेल्ट नहीं हो जाती पूरी, तब तक वो पानी जो है, मतलब आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड दैट लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, उनका टेम्परेचर सेम रहता है. वो क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ काइंड ऑफ हीट विच इज हिडन देयर. अब एज यू नो, जैसे अगर हम आइस की बात करते हैं, आइस क्या है? इट्स अ सॉलिड स्टेट. सॉलिड में क्या होता है? द पार्टिकल्स आर रियली क्लोज टुगेदर एंड दे हैव गॉट a very high force of attraction. So we need to break that force of attraction in order to convert solid into liquid. So when we are giving the heat energy, that heat energy is being utilized just to break those bonds. हम सिर्फ उन bonds को तोड़ने का काम करते हैं, और हमारे पास क्या है कि वी आर नॉट रेजिंग द टेम्परेचर, क्योंकि वो एनर्जी जब मिल रही है साथ के साथ यूज हो रही है. जब वो स्टेट चेंज हो जाती है, एंड इफ वी कंटिन्यू टू फर्दर हीट अप द लिक्विड, ओनली देन द टेम्परेचर विल राइज, अदरवाइज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. So this kind of heat is your latent heat, and it is supplied just to overcome the force of attraction between the particles. अब now this जो आपका latent heat होती है, it's of two types. Number one is your latent heat of fusion, okay, and the other is latent heat of vaporization. Now we will look into this. What do you mean by latent heat of fusion, and what do you mean by latent heat of vaporization? Is it clear? Now we will move on and we will look into कि exactly latent heat में क्या हो रहा है, right? Just a second, beta. One is your latent heat of fusion. Okay, now we will look into this. अब latent heat of fusion होती क्या है? Actually latent heat of fusion जो है, ये वो heat है जिसे हम यूज कर रहे हैं, या वो required है कि आप एक solid को liquid state में convert करें. ठीक है, it's that heat energy. Now see, इसमें एक experiment किया गया just in order to verify कि जो हमारा temperature है, how it shows that variation, वो कैसे variation दिखा रहा है. ठीक है, वो इसमें शो किया गया. अब हाउ इट इज शोन वो अब हम देखते हैं कैसे है. ठीक है बेटा, देखिए बेटा, सबसे पहले what we have taken a stand, we have taken a tripod stand, then we put a wire gauge over that and एक beaker लिया, उसके अंदर we have taken ice is your solid state. Okay, इसके बीच में we have put up a stirrer ताकि हम उसको हिलाते रहें. Then for temperature recording we are using a lab thermometer. Okay fine. Now when we start to heat up this thing, what happens? Ice जो है वो melt होना शुरू हो जाएगी. But before starting the fire, what we did, we measured the temperature. It came out to be 0 degree. Okay, then what happened when it started melting? Again the temperature was recorded at regular intervals. Every time what we found was कि temperature जो है वो 0 degrees आ रहा था. Even when all of the ice was melted, even then the temperature was 0 degree. But after when the ice had melted, it was converted into liquid state, and even then we continued with the providing of the heat energy. Only then the temperature rose, otherwise the temperature didn't rise. Okay, is it clear? ठीक है, हमने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, क्लियर हो गया. सो ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि जब हमारी आइस जो थी, इट वाज इन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, मतलब वो पिघल रही थी. उस टाइम में देयर वाज नो राइज इन टेम्परेचर, कोई राइज टेम्परेचर नहीं हुआ. लेकिन जब सारी की सारी आइस मेल्ट कर गई और हम हीट को कंटिन्यू रखते हैं, तब क्या होता है? टेम्परेचर इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. यस भव्य? हाँ जी भव्य, आपकी आवाज कैसे आ रही है अभी? आवाज कट कट के आ रही है. मैम भव्या की आवाज कट के आ रही नहीं आ है रही. मुझे तो क्लियर आ गया.
आ रही है। हाँ जी बेटा, yes, सही आ रही है, कट कट हाँ वही ना आवाज बेटा, मेरे यहाँ पे सिग्नल तो फुल है। बच्चा आप ऐसे क्यों नहीं करते हो कि जो ये यूएसबी जो टीकरिंग हॉटस्पॉट होता है उसको ऑन कर लो, जो ब्लूटूथ से चलता है, उसमें बेटर आता है, उसमें लैग नहीं आएगा बेटा आपका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्राई टू लिसन। हाँ जी, अब देखो जो हीट हमने आइस को प्रोवाइड की, व्हाट इट इज डूइंग, टेम्परेचर तो वो इंक्रीज कर नहीं रही, तो व्हाट इट इज डूइंग, वो हीट कहाँ जा रही है, अब ये तो है नहीं। अब एज यू नो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप हीट एनर्जी आपने प्रोवाइड की और आइस में टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ, अब हीट डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती। वेयर इट हैज गॉन, वो कहाँ चली गई हीट। तो हीट इज लाइक इट्स नॉट गॉन एनीवेयर, इट इज स्टिल देयर, बट व्हाट हैपेंस इज कि वो जो हीट एनर्जी है दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन ब्रेकिंग डाउन दोज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड्स। वो उन बॉन्ड्स को जो पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, जो उसको पास पास पकड़ के रख रहे हैं, so that energy is being utilized to break those bonds and then convert the solid into liquid state. Is it clear? Now I will give you the exact definition of latent heat of fusion, which is it is the quantity of heat, ठीक है, in joules, which is required to convert 1 kg of solid at its melting point to liquid without any change in its temperature. Okay, so आप इसमें एक एक वर्ड का मतलब देखो बेटा कि what I have said कि it is the quantity of heat in joules, मतलब आपने joules के अंदर heat को measure करना है, which is required to convert 1 kg of solid, मतलब आपने per 1 kg, okay, हम grams में बात नहीं कर रहे हैं, we are talking in terms of kg, at its melting point, मेल्टिंग पॉइंट जो हमारा टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। उस क्वांटिटी ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं बेटा, वी कॉल इट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अंशु, आई एम रिपीटिंग दिस फॉर यू, it is the quantity of heat in joules which is required to convert 1 kg of solid at its melting point to liquid without any change in its temperature. Is it clear now? Should we move on? Yes. Now, देखो बेटा, the SI unit as you know जूल पर केजी आ गया हमारा, हमने अभी अभी इसको रीड किया और हमने अभी अभी इसको समझा कि हमने इसे क्या किया। Now, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये एक्सपेरिमेंट से इट इज नोन कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होता है ना, दैट इज 3.34 into 10 to the power 5 joules per kg। ओके, ये आप अपने नॉलेज के लिए याद रख सकते हो, अदरवाइज ये आपको एज सच नहीं पूछा जाता। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इक्वल टू 3.34 into 10 to the power 5 joules per kg। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि जब आपको 1 kg ऑफ आइस को मेल्ट करना है तो कितनी एनर्जी देनी है आपने, यू हैव टू प्रोवाइड इतनी एनर्जी, 3.34 into 10 to the power 5 joules। अगर आप इतनी एनर्जी देते हो तो वो 1 kg आइस मेल्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ओके, क्लियर है। अब देखो वो क्या रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, अब जो आइस है हमारा दैट इज एक्चुअली सॉलिड स्टेट। ठीक है, जो आइस है हमारा वो क्या है, सॉलिड स्टेट है। अब सॉलिड स्टेट का क्या मतलब होता है कि भाई जो सॉलिड स्टेट होता है उसके पार्टिकल्स जो होंगे ना, दे आर हेल्ड विद वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोजली टाइटली पैक्ड होते हैं। क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, हम आइस को दे रहे हैं हीट, वी आर प्रोवाइडिंग हीट। अब वो हीट क्या कर रही है, हीट इज डूइंग व्हाट इट इज डूइंग, इट इज ओवरकमिंग दोज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वो उसको क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है, ताकि जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं वो टूटते चले जाएं, वो फ्री हो जाएं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपने एनर्जी दी, ऑल्दो इट वाज थॉट टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि हम जब एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी चाहिए, लेकिन इस केस में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो ओवरकम कर रही है उस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को। तो इट इज नॉट एट ऑल हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। इसीलिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी अपनी जगह पे ही है, वो मूव नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ मूवमेंट।
तो क्या होता है, देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर, जिसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या आ रहा है कि हमारा जो राइज इन टेम्परेचर है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा. देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर until and unless whole of the ice is being melted. Is it clear now what is happening with that heat energy which is being provided for melting of ice? ये जो हमने 3.34 into 10 to the power 5 joules दिया, ये किस चीज के लिए दिया? This we are just giving up just to break down this forces of attraction. ये इसको तोड़ने के लिए हम दे रहे हैं. अगर हम इसके बाद कंटिन्यू रखेंगे अपनी एनर्जी देना, only then temperature will increase. Is it okay? Yes. चलिए, now move on. वेरी गुड पृथ्वी. नाउ सो अब देखो इसका एक और स्टेटमेंट आता है बेटा. मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है एंड आई होप anybody can answer. Just tell me, just give a hand raise and I'll ask the person. Ice at 0 degrees, ठीक है, is more effective. ठीक है जी, ice at 0 degree is more effective in cooling a substance than water at 0 degree. ठीक है, जो हमारा आइस है वो ज्यादा इफेक्टिव है ठंडा करने के लिए एज कंपेयर टू कि हम उसको 0 डिग्री वाले पानी में रख दें. हाउ इज इट पॉसिबल? क्या रीजन हो सकता है इसका? यस मैम, क्योंकि आइस की डेंसिटी ज्यादा है. ओके, आइस की डेंसिटी ज्यादा है. एनी अदर रीजन? पार्थ? यस बेटा. मनन? यस मैम. आई एम सेइंग कि आइस जो है एट 0 डिग्री इज मोर कूलर, या वो एक सब्सटेंस को ज्यादा ठंडा कर सकती है एज कंपेयर टू वाटर एट 0 डिग्री. मैम क्योंकि आइस के अंदर मैम कम मैम एनर्जी है मैम. वाटर के अंदर मैम जो आइस है मैम वो ज्यादा उसको एनर्जी वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है. वाटर को वो वाटर कम एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, तो आइस ज्यादा जल्दी ठंडा कर सकते हैं किसी भी चीज तो को. भव्य आप बेटा? मैम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस नहीं बन जाता. बिकॉज ऑफ यस हाँ जी भव्य. लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. यस पृथ्वी, आपका जो क्वेश्चन था, आप कह रहे हो कि मैम वो 0 डिग्री पे वो नहीं बन जाएगा. दैट वुड डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. अगर आप उसको टेम्परेचर मतलब हमारा ठंडक ही कंटिन्यू कर रहे हो तब वो आइस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, है ना. नहीं तो वो लगातार हीट जो है वो लूज होती रहती है. अब देखो बेटा, ये जो भव्य ने पॉइंट बताया इट इज वेरी करेक्ट. अब देखो बेटा, जो आइस है हमारा 0 डिग्री पे, हमारे पास दो चीजें हैं. वी हैव टू थिंग्स. वन इज योर आइस एट 0 डिग्री and the other is water at 0 degree. अब what is happening actually, जो ये आइस होता है ना, ये सब्सटेंस से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो यूज करता रहता है. ठीक है, अब सब्सटेंस से इसने हीट ले ली बिकॉज अब आइस 0 डिग्री पे है तो इसको तो ब्रेक डाउन करना है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना है. तो ये क्या कर रहा है, ये सब्सटेंस से ना एनर्जी बोरो कर रहा है. इट इज टेकिंग एनर्जी फ्रॉम दिस सब्सटेंस. और कितनी एनर्जी ले रहा है? जो इसकी एनर्जी थी 3.34 into 10 to the power 5 joules. इसने एनर्जी ले ली. अब ऑब्वियसली एक सब्सटेंस अगर इतनी एनर्जी दे देगा तो वो ठंडा हो जाएगा, नेचुरल सी बात है. लेकिन जो वाटर है एट 0 डिग्री उसको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, तो वो इससे कुछ भी एनर्जी बोरो नहीं करता. इट डजंट बोरो एनी एनर्जी फ्रॉम दैट सब्सटेंस एंड दैट इज व्हाई कि वो सब्सटेंस को ठंडा नहीं कर पाता, जबकि आइस जो है वो ठंडा कर रही है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. इज इट ओके बेटा कि वो सब्सटेंस से वो हीट ले रहा है क्योंकि उसको कन्वर्ट होना है. किसमें कन्वर्ट होना है? वाटर एट 0 डिग्री. वो ठंडक तभी देगा. नाउ इट्स क्लियर? यस. चलिए अब देखो बेटा, अब इसमें उल्टा भी यही होता है. इफ अ लिक्विड फ्रीजेस टू फॉर्म अ सॉलिड, जब एक लिक्विड जो है वो सॉलिड बनेगा तो नेचुरल सी बात है वो उतनी एनर्जी रिलीज भी तो करेगा ना. वो एनर्जी को रिलीज करता है. ठीक है, क्योंकि देखो जब आइस ने एनर्जी यूज की क्या बना? लिक्विड बन गया. लेकिन जब लिक्विड क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा, तो वो पीछे जा रहा है तो उसको एनर्जी अब लिबरेट आउट करनी पड़ेगी. तो वो एनर्जी को लिबरेट आउट कर देता है. ठीक है, तो वो एक इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग गिवन आउट. नाउ कम्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब व्हाट इज दिस? वेपराइजेशन क्या है? जब ये तब एग्जिस्ट करता है व्हेन अ लिक्विड इज चेंजिंग टू गैसियस स्टेट. ठीक है, जब एक लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में बदल रही है. अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स which is required to convert 1 kg of liquid to vapor without any change in temperature. इसमें भी अगर आप देखो सेम टर्मिनोलॉजीज हैं हमारी.
हमने हीट क्वांटिटी ऑफ हीट ली जूल्स में, हमने 1 kg ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट किया इनटू वेपर, और कोई भी चेंज नहीं है टेम्परेचर के रीडिंग में. इज इट ओके? अब ये कैलकुलेशन से पता लगाया गया है कि जो आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है ना in case of water, that is 22.5 into 10 to the power 5 joules. ठीक है, तो ये वैल्यूज आप अपनी नॉलेज के लिए याद कर लेंगे तो बेटर रहता है. ठीक है, सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.5 into 10 to the power 5 joules. क्लियर बेटा? यस, चलिए. इसमें भी ना बेटा जो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, सेम एक्सपेरिमेंट था जो हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए किया था. उसमें भी जब आप वाटर को बॉईल करते हो तो वो 100 डिग्रीज पे रहता है, और वो तब तक 100 डिग्रीज पे रहेगा जब तक वो वाटर जो है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता. ठीक है बेटा? सेम चीज रहता है उसमें भी, जो टेम्परेचर रीडिंग है आपका बिल्कुल सेम रहता है. ठीक है पार्थ? यस मैम. यस, चलिए. नाउ बेटा देखो, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है. जो वो वाटर है बेटा, इट्स लिक्विड स्टेट. नेचुरल सी बात है, जब आप उसको क्या कर रहे हो, उसके जो पार्टिकल्स हैं दे आर बाउंडेड बाय सम काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना. उसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, और वो नेचुरली पार्टिकल्स को एक जगह पे सोच के चलते हैं कि नहीं, इसको आई हैव टू मेक दैट स्टिल, उसको स्टिल रखना है. सो जब आप उस बॉन्ड्स को अगर आप तोड़ देते हो, उसको तोड़ने के लिए यू आर प्रोवाइडिंग दैट हीट एनर्जी, आप उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो. ठीक है, तो वो हीट एनर्जी क्या करती है, इस पूरे बॉन्ड्स को तोड़ देती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं और आपकी जो स्टेट है इट गेट्स चेंज. अब इसमें देखो, इसमें भी वही बात आती है बेटा कि जो हमने बात की थी ना कि आइस जो है 0 डिग्रीज पे इट इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग. इसी तरह से जो स्टीम होती है ना, it contains more heat as compared to water at the same temperature of 100 degrees. And you won't believe, जो बर्न्स होते हैं स्टीम के, दे आर मोर पेनफुल, वो ज्यादा हार्म करते हैं एज कम्पेयर टू जो बॉइलिंग वाटर अगर आपके ऊपर गिरे, क्योंकि स्टीम में वही सेम चीज आ गई बेटी. उसके पास जो छुपी हुई हीट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इट हैज गॉट अ स्पेशल टूल इन विद इट व्हिच इज योर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. इज इट क्लियर बेटा? जो स्टीम है, व्हाट इट हैज गॉट, it has got latent heat of vaporization. की वजह से इसके पास there is more heat energy. Okay, clear बेटा? Yes, yes ma'am. Yes ma'am. Okay, now अब हमने कल जब बात की थी, we started about कि भाई एक होता है solid से liquid, liquid से gas, gas से liquid और liquid से solid. ये एक normal process है. आपको पता है out of the turn भी कुछ लोग होते हैं. अब कुछ ऐसे होते हैं आउट ऑफ द टर्न, वो कहते हैं यार सॉलिड शुरू है, कौन बीच में लिक्विड में पंगा पाएगा, छड़ पर सीधा गैसियस स्टेट में जंप कर जाते हैं. तो क्या करते हैं, और उधर से गैसियस स्टेट भी ऐसे ही सोचता है, वो कहता है यार अब कौन पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा फिर जाके सॉलिड में कन्वर्ट होगा. तो स्ट्रेट अवे हम जंप कर जाते हैं और सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाते हैं. सो व्हेन यस मैम. हाँ जी बेटा. मैम पर जैसे सॉलिड से सीधा गैस जा रहे हैं तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगती है. यस ऑब्वियसली बेटा, उसको स्किप करना है तो एनर्जी तो चाहिए है ना बेटा. तो उसको क्या होता है, वेरिएशन ज्यादा है. यस मैम कैंपर को जलाने के लिए भी हमें मैच स्टिक चाहिए होती है जो जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसको एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है ना उसके लिए, क्योंकि इट्स अ सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है वो आपकी. ठीक है, अब देखो व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन. देखो सब्लिमेशन क्या है बच्चे हमारा, it's when solid state changes directly into the vapors on heating, and while vapors they come back to solid state, solid substance on cooling. मतलब ये चल रहा है, जो ये solid substance था it will convert into, एक सेकेंड बेटा, it will directly undergo sublimation and will form gaseous vapors. तो जो substance आपका जो सब्लिमेशन कर रहा है, मतलब जिसकी सब्लिमेशन हो रही है या जो सीधा उसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सबलाइन. क्या बोलते हैं उसको? सबलाइन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सबलाइन. और जो गैसियस स्टेट बन गई उसको हम बोलते हैं सब्लिमेट. क्या बोलते हैं उसको? सब्लिमेट. ओके, अब इसके बड़े सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, नेफ्थलीन बॉल्स हैं. आपको पता है हम ह्यूमंस होते हैं ना, we are very tricky. हम ना हर चीज का वो देख लेते हैं कि क्या इसका इफेक्ट है, like what is the effect of
अब जैसे नेफ्थलीन बॉल्स है, अब ये क्या प्रॉपर्टी दिखा रही है कि सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब हमारे दिमाग में ये प्रॉपर्टी आ गई, अब इसको यूटिलाइज कैसे किया जाए? बड़ा अच्छा तरीका है, विंटर के क्लोथ्स लिए, उसके बीच में नेफ्थलीन बॉल्स रख दी, कपड़े भी नहीं खराब हुए, एंड वी आर सेफ फ्रॉम मॉथ। अगर ये नेफ्थलीन बॉल सॉलिड से लिक्विड में बदलती तो क्या होता आपके कपड़ों का हाल? सब सोच सकते हो ना, वो लिक्विड होता तो सब गीले गीले हो जाते, राइट, सब चीजें ruin हो जाती। अब ये क्या हो रहा है, दे डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म, तो ये उड़ जाती हैं, दे आर गायब बाय मैजिक। क्लियर हुआ? यस। नहीं मैम, कैंपर में बीच में थोड़ा सा लिक्विड आता है। कैंपर, हाँ ऑब्वियसली बेटा, क्योंकि दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अब नेफ्थलीन बॉल्स क्या करते हैं, हम कहाँ रखते हैं? वी कीप इट इन आवर विंटर क्लोथ्स। अब विंटर क्लोथ्स दे आर वार्म, दे आर क्लोज सरफेस, वो क्लोज्ड एरिया होता है, Yes, आप उसको हर वक्त नहीं देख रहे हो। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हाउ क्लेवरली वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अदरवाइज सब्लिमेशन क्या है हमारे लिए? अगर आप इसको एक डायरेक्टली ऐसे ही पढ़ रहे हो कि सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में चली गई, तो इसका हमें क्या फायदा हुआ? तो फायदा हुआ हमें? कोई फायदा नहीं है ये। लेकिन हमने इसको यूटिलाइज किया, हमने कहाँ यूटिलाइज किया? वी आर यूटिलाइजिंग इट फॉर आवर ओन पर्पस। अभी एक यूटिलाइजेशन और है, विच इज योर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस। अब आप देखो, ड्राई आइस नाम सुन के कितना अजीब लगता है, मतलब सूखी हुई आइस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अब हमें कितनी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बिना गीले करे हमें रखनी होती हैं। अब ये जो होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इट इज डूइंग, ये फ्रीजिंग पॉइंट कम रख लेती है, ठंडक बना के रखती है, और सबसे बड़ी बात है ये गीला नहीं करती है, ठीक है। तो ये सबलाइम, जैसे ही आप इसका प्रेशर रिलीज करोगे, ये फटाफट से CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई बीच में लिक्विड स्टेट नहीं आता। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। क्लियर हुआ? मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हाँ वो बच रहा है कि नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ क्लेवरली वी हैव यूज्ड दिस प्रॉपर्टी। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इज इट क्लियर? अब बेटा ये हमने अभी देखा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आ रहा था। नाउ वी विल सी कि प्रेशर क्या इफेक्ट देता है, कैसे वो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करता है, वो देखते हैं। देखो बेटा, हम ये बात कर चुके हैं कि दो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हम किसी भी फिजिकल स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर हमने बड़ी थॉरली उसको हमने स्टडी कर लिया है। नाउ वी विल लुक इनटू प्रेशर। अब गैसेस जो है हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं, दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। आप उसको लिक्विफाई कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो, नोबडी विल से एनीथिंग टू यू, लेकिन उसके लिए दो कंडीशंस होना बहुत जरूरी है। पहला, यू हैव टू अप्लाई प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, टेम्परेचर को लोअर करना पड़ेगा, हायर नहीं करना, यू हैव टू लो डाउन द टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर लो डाउन मतलब आप उस पार्टिकल से काइनेटिक एनर्जी छीन रहे हो, ठीक है, यू आर स्नैचिंग अवे द काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगा, पार्टिकल्स की जो मोशन पहले इतनी ह्यूज जा रही थी, अब वो रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज उसके पास एनर्जी कम है। क्लियर हुआ बात? हम टेम्परेचर क्यों कम कर रहे हैं? क्लियर हुआ? यस। नाउ Yes, ma'am. छोटा सा मैंने आपके लिए यहाँ पे आई हैव मेड सम डायग्राम्स सो एज टू जस्ट शो यू द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो बच्चे, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग। अब ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें हमारे पास गैस पार्टिकल्स, एंड एज यू कैन सी इनके बीच में देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस, ये काफी स्पेस है इसके बीच में। दिस इज अ काइंड ऑफ पिस्टन जिससे आप प्रेशर देके इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। अब जैसे ये इस लेवल से थोड़ा सा हमने इसको नीचे प्रेस किया, तो ऑब्वियसली जो ये स्पेस थी इट गॉट रिड्यूस्ड। इसके हिसाब से द स्पेस इज लेस, वी आर कंप्रेसिंग as well as we are cooling. Okay, then again we continued with the compression and the cooling part, and in the end our gas was liquefied. Is it clear? Yes, ma'am. yes. So gases, they can be liquefied, ठीक है जी, they can be liquefied by applying pressure and lowering temperature. तो इसका क्या मतलब है कि जब भी आपने ये लिक्विफिकेशन प्रोसेस करनी होती है ना, so what we need to do कि गैस को पहले ठंडा करना पड़ता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे, उसके बाद हम उसके ऊपर प्रेशर पुट करते हैं। अब पहले टेम्परेचर डिक्रीज किया तो उसका क्या मतलब है, हमने जो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी थी वो रिड्यूस कर दी, ठीक है, ताकि हम उसके ऊपर जब प्रेशर बनाए तो वो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस थी वो रिड्यूस हो जाए। नाउ इट्स फाइन, इट्स क्लियर नाउ? यस। अब देखो, अगर मैं प्रेशर डिक्रीज कर रही हूँ और टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ, अब देखो ऊपर हमने क्या किया था, प्रेशर को इंक्रीज किया था, टेम्परेचर को डिक्रीज किया था, क्लियर है। अब सेकंड केस में हम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं और टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। नाउ वी आर डूइंग द अदर वे राउंड, ठीक है बेटा।
अब हम अदर वे अराउंड चल रहे हैं, वी आर डिक्रीजिंग द प्रेशर एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इससे भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज ड्राई आइस विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम बहुत हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करके रखते हैं, बहुत हाई प्रेशर के अंदर। तो उसका फायदा क्या होता है, एक तो ये डीप फ्रीज करता है, दूसरा आइसक्रीम वगैरह को ठंडा करने में हेल्प करता है। जैसे ही आप इस प्रेशर को रिलीज करोगे, जैसे ही आपने इस प्रेशर को रिलीज किया, ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में नहीं आता। जैसे ही आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे, आप ये देखो यहाँ पे वी आर डिक्रीजिंग द प्रेशर, सेम थिंग इज अप्लाइंग। जब आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के केस में जब आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो, स्ट्रेट अवे उसकी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है, सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में चला जाता है। क्लियर है बेटा? Yes. Now the next phenomena is evaporation. Evaporation से तो everybody is like known to, है ना, सबको पता है evaporation क्या होता है। Kind of process जिसमें liquid जो है changes into vapor form below its boiling point, है ना। जरूरी नहीं है कि वो boil हो तभी evaporation होगी। जैसे मम्मा कपड़े धो रही हैं तो वो सूख जाते हैं, अगर आप उसको बाहर हैंग आउट करते हो तो वहां पे तो हम कुछ भी बॉइलिंग चीज नहीं दे रहे हैं, हम ये तो है नहीं कि नीचे आग लगा के रखा हुआ है तभी वो सूख रहा है। रेनफॉल हुई, बारिश होती है, रोड्स के ऊपर पानी भर जाता है, एंड अगले दिन अगर सनी डे होता है तो क्या होता है, अपने आप वो सारा पानी जो है वो सूख जाता है ना। तो दिस इज अ काइंड ऑफ इवेपोरेशन। तो ये आपका इवेपोरेशन होता है। तो पर एक चीज होती है कि अगर इवेपोरेशन आपको चाहिए कि वो प्रोसेस हो, तो नेचुरली कुछ तो एनर्जी आपको देनी ही पड़ेगी ना, आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप लिक्विड को गैसियस स्टेट में बदल रहे हो। बट इसमें ये है कि ये रूम टेम्परेचर पर भी हो सकती है, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पर भी होती है, लेकिन आपको वो जो एनर्जी थी वो मीटिंग टाइम खत्म होने वाला है। हाँ जी, वो प्रोवाइड करनी ही पड़ती है। आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर। Yes. Now we were talking about the evaporation. So I said कि obviously there is some kind of heat energy which is to be supplied in order to sustain that process of evaporation, and that amount of heat energy is actually your latent heat of vaporization, which will help to break down the bond of force of attraction between the particles and then convert the state of matter, है ना। आप जो liquid state था उससे वो gaseous state में उसको convert करता है। Now what happens is, what are the factors which affect evaporation? Obviously कुछ ऐसे factors होते हैं जिसके वजह से evaporation का जो rate है it tends to decrease or increase, obviously कुछ effect पड़ता ही है। अब जैसे सबसे very first is your temperature. अब what do you think, temperature का क्या effect आ सकता है? Anybody can have idea? I'm saying कि जो rate of evaporation है that is directly proportional to temperature. What do you mean by direct? रेट ऑफ इवेपोरेशन को स्लो डाउन भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। Yes, पार्थ? मैम अगर टेम्परेचर ज्यादा होएगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होएगी। Yes, evaporation मैम वो भी उसके इंक्रीज और डिक्रीज को इवेपोरेशन रेट को कंट्रोल करता है। बिल्कुल। तो क्या होता है बेटा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, ऑब्वियसली यू आर गिविंग इन मोर एनर्जी, आप एनर्जी ज्यादा दे रहे हो, ठीक है, तो नेचुरली आपका जो इवेपोरेशन रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हो तो रेट ऑब्वियसली डिक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर रेनी सीजन चल रहा है, ठीक है, लगातार 2 दिन बारिश रहती है और धूप नहीं आई है, दैट मीन्स टेम्परेचर इज डिक्रीज, टेम्परेचर कम हो गया, तो क्या वो जो रोड्स के ऊपर पानी था वो इवेपोरेट होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पे जस्ट एक घंटा रेनफॉल हुई और उसके बाद एकदम से धूप आ गई, तो व्हाट विल हैपन, पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। यस, क्योंकि हमने क्या किया, इवेपोरेशन जो है क्या कर दिया, जो रेट था इवेपोरेशन का वो इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर बढ़ा दिया। यस, वेरी गुड। तो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट फैक्टर इज, देखो अब इसमें ना एक छोटी सी मैंने आपको ये बात यहाँ पे लिखी है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि पार्टिकल्स की ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, नेचुरल सी बात है, और वो फटाक से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले बॉन्ड्स होते हैं ना उनको ओवरकम कर जाता है, एंड इन दिस वे स्टेट चेंजेस। अब ये जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा ना, इट विल बी मैक्सिमम एट द बॉइलिंग पॉइंट, ये मैक्सिमम होता है बॉइलिंग पॉइंट पे। इसको ध्यान में रखना कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है मैक्सिमम है कहाँ पे,
एट द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जो भी आप सब्सटेंस को इवेपोरेट करा रहे हो उसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा उस पॉइंट पे, उस टेम्परेचर पे इवेपोरेशन जो है वो सबसे मैक्सिमम होगी। इज इट क्लियर? यस, चलिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर it is surface area of the liquid. और what do you mean by surface area? मतलब हम यहाँ पे मैथ्स क्यों कर रहे हैं? Anybody? Surface area मतलब surface, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा मैम उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगी। हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द एरिया, वी जस्ट सीइंग, वी आर जस्ट कंपेयरिंग कि कितना स्पेस अवेलेबल है इवेपोरेशन के लिए। सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक बहुत बड़ा पिट है तो उसमें से पानी जल्दी सूखेगा बजाय कि छोटे से, राइट? क्लियर है मैम? हाँ जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, विच इज योर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है भाई? ह्यूमिडिटी, वी हैव हर्ड दिस। यस भव्य, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? The amount of water vapors in the air. यस, एटमॉस्फेयर में जितनी भी आपकी डैम्पनेस होती है ना, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स व्हिच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, दैट डिनोट्स ह्यूमिडिटी। अब बेटा रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि अगर मैं उतना कम इवेपोरेशन होगी। यस, अब देखो बेटा, अब इसका छोटा सा एग्जांपल है, जब वो आता है ना आफ्टर रेनी सीजन, जब वो आता है मौसम, जब चिपचिप सी होती है, ह्यूमिडिटी होती है काफी, तो आपने नोटिस किया होगा जब आप स्वेट करते हो, वो स्वेट आपका सूखने का ही नाम नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी पानी है, वाटर वेपर्स हैं, तो वो कहता है भाई मुझे और नहीं चाहिए, माई स्टमक इज फुल, आई डोंट वांट टू ईट मोर, तो वो मना कर देता है। दैट इज व्हाई जो इवेपोरेशन है वो नहीं हो रही है। पानी कहाँ जाएगा उड़ के? इट विल गो इनटू एटमॉस्फेयर, राइट अंशु? एटमॉस्फेयर में ही जाएगा ना। अब एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी पहले से ही है, पहले से पानी है, वो कह रहा है भाई मैं नहीं रख सकता इसको, तुम अपने पास ही रखो। तो उस टाइम पे आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डेड स्लो। इज इट क्लियर? यस, नाउ Yes, ma'am. नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट फैक्टर क्या आता है बेटा? आपका नेक्स्ट फैक्टर है विंड स्पीड। ओके, इट इज द विंड स्पीड। विंड स्पीड क्या होती है भाई? व्हाट इज विंड स्पीड? किस स्पीड पे हवा चल रही है, राइट? सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। जितनी हवा चलेगी उतनी ज्यादा आपकी रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, ठीक है। अगर आपकी विंड स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर हम विंड स्पीड को कम कर रहे हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। जैसे कम हो जाता है। यस, हवा चल रही है, आप जैसे भाग कर आए, आपको खूब पसीना आया हुआ है, एंड यू आर जस्ट सिटिंग, आप एकदम फैन के नीचे आके बैठे हो, विदिन 1 मिनट आपका सारा पसीना इज गायब, है ना? दैट ऑल स्वेट हैज गॉन। व्हाई? बिकॉज एकदम से स्पीड जो है, हवा की स्पीड वाज देयर, so it helped out to increase the rate of evaporation. Clear बेटा? Yes. Yes, ma'am. अब बेटा जो इवेपोरेशन होता है ना, जहाँ पे भी हो, जिस सरफेस पे हो रहा है, जहाँ पे भी हो रहा है, चाहे वो हमारी बॉडी पे हो रहा है, वेयर एवर इट इज अकरिंग, वो कूलिंग इफेक्ट जरूर देता है। आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप स्वेट से पूरे भरे होते हो एंड आप एकदम फैन के आगे आगे बैठ जाओ, कितनी ठंडी ठंडी हवा लगती है वो। अभी तो खैर इमेजिन भी नहीं हो रहा होगा क्योंकि अभी तो हम ठंडी से बाहर आए हैं एंड नाउ वी आर लॉक्ड अप, तो अभी तो वो वाला फेज आ ही नहीं रहा होगा ना माइंड में। ठीक है, सो अब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मैंने आपको क्या कहा था कि इवेपोरेशन करने के लिए वी नीड टू हैव पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। वो हीट एनर्जी क्या थी? जो उसके बीच में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं पार्टिकल्स के बीच में, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनको तोड़ने के लिए वो एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से लेता है? उस सब्सटेंस से ले लेता है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट, इस वजह से वो सरफेस जो है आपको ठंडी लगती है, ठीक है, वो ठंडक देती है, कूलिंग इफेक्ट देता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर हम वो मिट्टी वाले घड़ों में पानी रखते हैं तो वो काफी ठंडा पानी होता है एज कम्पेयर टू स्टील पॉट्स, है ना। अगर आप स्टील पॉट में पानी रखते हो तो ठंडा नहीं होगा, हाँ फ्रिज में रखोगे तो ठंडा होगा नेचुरली, उसमें भी क्योंकि हम एनर्जी जो है ले रहे हैं, फ्रिज जो है वो एनर्जी उससे ले रहा है, राइट। ऐसे ही पर्सपिरेशन, जब आपको स्वेटिंग होती है, मैम कॉपर पॉट में पानी ठंडा रहता है। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मेटल्स जो हैं वो क्या बोलते हैं, अच्छा ठंडा कर देते हैं पानी को। कॉपर वाला स्पेशली, आयरन वगैरह तो नहीं करेगा, कॉपर कर देता है, यस।
वेयरिंग ऑफ कॉटन क्लोथ आपको मैम क्यों कॉपर कहा? क्लीन हाँ जी, कॉपर क्लीन भी कर देता है। क्लीन भी कर देता है। उसको ना कहा जाता है आयुर्वेद के हिसाब से, जो हमारा एक आयुर्वेद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि अगर आप कॉपर वेसल में पानी रख के पीते हो तो इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. It is said like that in that line of treatment. So हर बारी आपको समर्स में ये कहा जाता है कि you just wear cotton clothes because वो क्या करते हैं, स्वेट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड उसको इवेपोरेट करने में हेल्प करते हैं, जिससे क्या है कि कूलिंग इफेक्ट आता है. इसी तरह से एक क्वेश्चन बहुत आता है, ये आपके एनसीईआरटी के बुक्स में भी है कि why desert cooler works better on a hot dry day. हॉट मतलब हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, एज रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, देयरफॉर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस. ड्राई डे मतलब ह्यूमिडिटी इज वेरी लेस एंड एज वी नो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी. हाँ जी मैम इवेपोरेशन ज्यादा होएगी. यस, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम है इस वजह से क्या है, इवेपोरेशन रेट जो है वो बढ़ जाएगा. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये काफी सारे सैंपल पेपर्स, काफी स्कूल के पेपर्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन. व्हाई सिपिंग ऑफ हॉट मिल्क इज इजियर फ्रॉम अ सॉसर देन फ्रॉम अ कप. तो वो नेचुरल है, जो सॉसर है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया एज कंपेयर टू कप, एंड एज वी नो कि जो रेट तो वो ऑफ कूल ज्यादा इवेपोरेशन, जरूरी है. रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया. तो इस वजह से जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन अपने आप इंक्रीज हो गया. क्लियर? यस. अब हाउ कैन यू से कि एटमॉस्फेयर में पानी प्रेजेंट होता है, हमें तो नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं लग रहा कि पानी है. हाउ कैन आई फील दैट, हाउ कैन आई टेस्ट दैट? इवेपोरेशन, अच्छा, और कुछ? वाटर वेपर. अगर हम ठंडे पानी का ग्लास रख दें तो आसपास क्या बन जाता है ग्लास के ऊपर? बहुत चिल्ड वाटर होता है, बर्फ डाल के रख दो आप तो क्या वाटर? ब्लर सा हो जाता है. वो पॉप आवाज आती है, पॉप करने की आवाज आती है. नहीं, जो आपने टम्बलर लिया उसके बाहर आउटर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स मैम नहीं आ ब्लर जाते? सा हो जाता है, ब्लर भी हो जाता है. हाँ, नहीं तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो आते हैं वो कहाँ से आए? वो ग्लास के अंदर वाले तो नहीं आते बाहर. भव्य? मैम जो बाहर होते हैं मैम वो कूल हो जाते हैं. यस, उनकी कंडेंसेशन हो जाती है. यस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आइस क्या कर रहा है, आइस क्या करता है, आइस मेल्ट होने के लिए क्या लेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और उसकी वजह से क्या होता है, जो आसपास के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है एंड दे अंडरगो कंडेंसेशन, और वो ग्लास के ऊपर हमें स्टिक नजर आते हैं. ठीक है, अब बेटा देखो, हमने इस चैप्टर में ना स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा. वी स्टडीड कि हाँ जी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है और हमने उन्हें बहुत थॉरोली पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. लेकिन अभी ये कहा जाता है कि वी आर इनटू अ फेज, अभी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, ऑल्दो ये चीजें अभी विजिबल नहीं है, इट्स नॉट विजिबल टू द नॉर्मल पर्सन, कि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर अभी तक बना ली गई हैं. जो 3 तो हम पढ़ चुके हैं, द रेस्ट ऑफ द 2 आर प्लाज्मा एंड बेक, व्हिच इज बोस आइंस्टाइन्स कंडेंसेट. ठीक है, अब व्हाट इज प्लाज्मा? सबसे पहले आता है प्लाज्मा. अब प्लाज्मा टीवी तो सबने सुना होगा, राइट? होता क्या है, इट इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस. इसमें काफी सारे मिक्सचर होता है इलेक्ट्रॉन्स का और आयंस का. अब इलेक्ट्रॉन्स आपको थोड़ा सा वेग आइडिया है कि एटम के बीच में होते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज, राइट? यस यस. आयंस होते हैं बेटा, दे आर ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या फिर लूज करते हैं, तो उससे हमारे को आयंस बनते हैं. क्लियर है बेटा? यस, ठीक. अब ये स्टार्स में मिलता है प्लाज्मा, नेचुरली जो अकर कर रहा है वो स्टार्स में कर रहा है एंड इट कॉजेज द स्टार्स टू ग्लो. और इसको हमने यहाँ पे बनाया है, अर्थ पे बना है ये. व्हाट दे डिड साइंटिस्ट, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब होती है, उसके अंदर हम एक गैस फिल करते हैं एट अ वेरी 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 लो प्रेशर. अब जब उसमें से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, देन वी गॉट दिस, वो मिक्सचर बन गया इलेक्ट्रॉन्स का और आयंस का. सो दैट स्टेट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. लेकिन अभी इस पे काफी स्टडी होनी बाकी है, क्योंकि जैसे अभी हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में इतनी चीजें पता है, अभी प्लाज्मा के बारे में वी आर नॉट दैट मच, हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है अभी. अगला जो 5th प्रपोज्ड, मैम प्लाज्मा माइक्रोस्कोपिक होता यस इट्स माइक्रोस्कोपिक, वी कांट सी इलेक्ट्रॉन्स, हम तो एटम्स ही नहीं देख पाते बेटा, तो इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ से देखेंगे? है. तो फिर इसमें मैटर कैसे होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, हाँ जी बेटा. मैम इसको मैम उसमें रॉकेट्स में भी नासा मैम डेवलप कर रही है. हाँ जी बेटा, ये मास ये मैटर इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है बेटा, चाहे वो बहुत थोड़ा है लेकिन मास है उसका. एटम जो होता है ना वो 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का बना होता है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स.
क्लियर है? ये हमें पता है ना अंशु? तो ये चीजें ऑक्युपाई करती हैं स्पेस, Yes. ऑल्दो दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बट वो हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जब आप पढ़ोगे, यू विल बी रियली फैसिनेटेड टू रीड दैट चैप्टर। सो अब इसमें क्या हो रहा है, अब जो नेक्स्ट फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कहा गया, वो 1920 में हमारे सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ कैलकुलेशंस करके ये कहा कि भाई ऐसा कुछ होता है। तो उसके ऊपर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस चीज को पक्का कंफर्म करा कि यस, देयर इज सम काइंड ऑफ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर व्हिच इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसको इन्हीं की कैलकुलेशंस के ऊपर बेस ये तीन हमारे साइंटिस्ट हैं, कॉर्नेल, टेक्सविक एंड वेलमैन, यूएसए के हैं। इन्होंने लैब में ये कंडेंसेट बना लिया। कैसे बनाया? इन्होंने ना गैस ली, मर्करी गैस, और उसको ना बहुत लो डेंसिटी। अब वो डेंसिटी पता है कितनी लो थी? आप जैसे हमारी डेंसिटी है ना, नॉर्मल एयर की डेंसिटी से करीब 100,000 टाइम्स कम, मतलब 1/, तो इतनी कम डेंसिटी की उन्होंने गैस ली और उसको सुपर लो टेम्परेचर्स पे ठंडा किया, एंड दे गेट टू हैव दिस स्पेक। तो अभी इसके ऊपर तो रिसर्च काफी चल रही है, क्योंकि इट इज, एक तो कंडीशंस को अचीव करना बहुत मुश्किल है, ये कंडीशंस बहुत जल्दी अचीव नहीं होती हैं। तो अभी इसके बारे में हमें उतनी नॉलेज नहीं है कि हम इसको बड़े अच्छे से आपको पढ़ा सकें और समझा